بٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، عمران خان جمہوریت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلنا بند کر دے۔ پی پی چیئرمین کا بڑا مطالبہ، کہا عمران خان کے خلاف جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لائی گئی تو انہوں نے مارشل لاء کی دھمکی دی۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ پہلے بھی عمران خان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی ہے، آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے۔ خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ خان صاحب کو اور ان سارے قوتوں کو پیغام بھیجنا چاہیے کہ اب یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں۔ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تاریخ پر کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ عوام کو 26 نومبر کو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی۔ بالکل، عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے اسلام آباد میں ملوں گا۔ 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی، قرآن میں کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے کئی جگہ۔ تو خان صاحب عوام کو 26 نومبر کو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ راولپنڈی پہنچنے کی بھی کال دے رہے ہیں۔ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اسلام آباد میں ملوں گا۔ آپ کو بتائیں، عمران خان کا ایک اور تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے۔ عمران خان کی عوام کو 26 نومبر کو پہنچنے کی کال دی گئی ہے۔ راولپنڈی جائیں یا اسلام آباد؟ کارکن کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ بالکل، راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب کارکن اور عوام پریشان ہیں کہ پہنچنا کہاں پر ہے۔ عمران خان نے ایک اور تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے 26 نومبر کو کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچیں۔ راولپنڈی جائیں یا اسلام آباد، کارکنان کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے تاریخ بتا دی، حکمت عملی نہیں بتائی۔ ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی، آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی۔ میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا۔ یہ تحریک رکنے نہیں لگی۔ اور آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ سے متعلق بے بنیاد افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ ہوا نہ ہوگا، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ دسمبر میں 1 ارب ڈالر کے بین الاقوامی صکوک بانڈ کی ادائیگی بروقت کی جائے گی۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے مطلوبہ ذخائر دستیاب ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی قابو میں ہے۔ کچھ بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اپنا ایک سوورن بانڈ جس کا نام obviously اسلامی بانڈ ہے، تو سکوک جس کو کہتے ہیں، وہ ایشو کیا ہوا ہے 1 ارب ڈالر کا۔ بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ کبھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، الحمدللہ وقت پہ یہ بانڈ ری پے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے، اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے 1 سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ہو چکا ہے۔ پھر افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے 2 دن بڑی کمی ہو جائے گی۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے۔ سپٹمبر کے مہینے میں یہ کوئی 316 ملین ڈالر پہ آ چکا ہے۔ اکتوبر میں بھی قریباً یہ 400 ملین ڈالر سے کم ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی 5-6 بلین سال کا، جو کہ پروجیکٹڈ کم سے کم 12 بلین تھا۔ اس کو بھی مینج کیا جا رہا ہے۔ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک جی پاکستان کا بہت پہنچ گیا آسمان پہ، وہ بھی ایسے یوز لیس قسم کی چیز ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر چیز ان آرڈر ہے۔
आपको बताएं कि घड़ी खरीदार की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातों का एक और सबूत सामने आ गया है। तोशा खाने की घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक की सदर ममलिकत आरिफ अलवी के साथ तस्वीर ने कई सवालात उठा दिए हैं। ये तस्वीर तोशा खाना की घड़ी खरीदने वाले पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातों के बड़े सबूत के तौर पर सामने आ गई है। उमर फारूक पीटीआई के दौरे हुकूमत में निजी और सरकारी महफिलों में शरीक रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें पहचानने से इनकारी हैं। उमर फारूक से फैसल वावडा, उमर अयूब, नईमुल हक और दीगर पीटीआई रहनुमा भी मुलाकातें करते रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने घड़ी नहीं बेची, गैरत का सौदा किया है, मुहासबा होना चाहिए। जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि एक पार्टी मुसलसल इदारों को निशाना बना रही है। हमारी हुकूमत दिन रात मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। देने वाला आपको इस मोहब्बत के साथ एक चीज देता है और उसे ये पता चले कि उसके तोहफे का ये सलूक हुआ है, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये उन्होंने अपनी घड़ी नहीं बेची, कौमी गैरत बेची है बता के अंदर, और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि मुहासबा होना चाहिए। एक सियासी जमात पाकिस्तान के हर इदारे को अटैक कर रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि हम न्यूट्रल एम्पायर बनना चाहते हैं या बन गए हैं, तो उस पर आप उन्हें कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी आप उन्हें मीर सादिक कहते हैं, कभी आप उन्हें जानवर होने का ताना देते हैं। ये तो फिर खुला तजाद है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान बड़ी किस्मत वाले हैं, उन्हें एक हीरा 2-250 का पड़ा है। इमरान खान अब एक रजिस्टर्ड चोर हैं। उमर फारूक अगर इतने ही 2 नंबर थे तो फवाद चौधरी उनके साथ बिजनेस क्यों कर रहे थे। इमरान खान साहब किस्मत वाले हैं भाई, मतलब उनको हीरे भी 2-2-250 रुपए में मिल जाते हैं। अब आप सर्टिफाइड खाइन हैं, सर्टिफाइड चोर हैं, घड़ी चोर हैं। तो वजीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि ध्यान करें, किसी दिन इमरान खान के जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का खरीदार ना आ जाए और वो इतना ही 2 नंबर था, तो फवाद चौधरी उसके साथ कारोबारी मामला क्यों कर रहा था। इमरान खान साहब की याददाश्त खोई हुई थी, उनको याद ही नहीं था कि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर से उनको नहीं लड़ना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए इमरान खान पर सियासी बस भी दौड़ा दी। बोले इमरान खान चाहता है इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उसे इक़्तिदार में लाए। आज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो इमरान खान को तकलीफ हो रही है। शर्जील मेमन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने घड़ी चोरी करने में भी हैट्रिक कर ली है। आप लोगों ने घड़ियां पहनी तो नहीं हुई है। आजकल मुल्क में आपको पता है घड़ी चोर चल रहा है, घड़ी चोर ने हैट्रिक भी कर ली है। घड़ी चोर को आवाज जा रही होगी। इतना झूठा, इतना मक्कार शख्स है ये घड़ी चोर। 4 गोलियों वाला सुपरमैन, उसका तो कोई परवाह नहीं है। मैं जाऊंगा लाहौर, 150 किलोमीटर दूर गया, वो भी कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गया है। पाकिस्तानी कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट के टेस्ट ट्यूब बेबी बनकर इसने 2018 में जबरदस्ती इक़्तिदार पे काबिज हुआ। हम सब खुश हैं, पूरी पाकिस्तान खुश है कि आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब जब उन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो इसको तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसको सपोर्ट चाहिए, इसको इंजेक्शन चाहिए कि इसको किसी भी सूरत में इक़्तिदार में लाकर बिठाया जाए। इसके रग रग में झूठ और फरेब शामिल है। ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए एक कैंसर साबित हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी मेडिकल कोर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और तिबी सहूलियात की फराहमी में आर्मी मेडिकल कोर के किरदार को सराहा। मुख्तलिफ मेडिकल सेटअप्स के दौरे में आर्मी चीफ के हमरा सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी थीं, जबकि रावलपिंडी में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कमांडेंट CMH ने अस्पताल में जदीद तरीन तिबी सहूलियात के बारे में बताया। कहा कि सिविलियन मरीजों की सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि आर्मी चीफ को एकेडमिक सेंटर में लाइव सर्जरी के अमल पर भी ब्रीफ किया गया। अब आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने अगले इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इंतजामिया से रिटर्निंग अफसरान लेने पर काम शुरू कर दिया गया है। खतूत लिखकर सूबाई हुकूमतों से अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खतूत लिखकर 4 चीफ सेक्रेटरी से ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम अफसरान की फहरिस्तें तलब की गई हैं। इन्हीं अफसरान में से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे। अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने का फैसला हुआ तो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखेगा।
اور آزادی کے نام کا مارچ کرنے والوں نے راستے بند کر کے شہریوں کی بنیادی آزادی ہی چھینی ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس عوام کے بجائے عوام کو پریشان کرنے والوں کی مکمل معاون اور سرپرست بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے عمر آصف کی۔ راولپنڈی کے چکبیلی موڑ روات پر پلازے لاک، دکانوں کو تالے، ٹریفک بند۔ ملک کی اس مصروف ترین جی ٹی روڈ پر کورونا لاک ڈاؤن واپس نہیں آیا، بلکہ 22 روز پہلے لاہور سے چلنے والا پی ٹی آئی مارچ پہنچا ہے۔ آزادی مارچ کے نام پر پارٹ ٹائم سیاسی شو کرنے والوں نے شہریوں کی بنیادی آزادی چھیننے کو وتیرہ بنا لیا، جس میں انہیں پنجاب پولیس کا مکمل تعاون اور سرپرستی حاصل۔ مارچ میں پی ٹی آئی کارکنان وقت پر نہ پہنچے تو پارٹی کیمپ کی کرسیاں بھرنے کی ذمہ داری بھی پنجاب پولیس نے سنبھال لی۔ سڑک پر پولیس موبائل کھڑی کر کے راستہ بند کیا، بچے بڑے خواتین بزرگ سبھی میلوں پیدل چلنے پر مجبور۔ گھر میں بیمار ہیں اور ڈینگی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، لے کے نہیں جا سکتے۔ ادھر پیچھے پیدل چل کے آ رہے ہیں، آگے وہ گاڑیاں روک رہے ہیں، ادھر بند کر رہے ہیں، آگے جانے ہی نہیں دے رہے۔ پیچھے بیریئر لگا ہوا ہے، سارے لوگ پیدل چل رہے ہیں، گاڑیاں ساری موٹر سائیکل بھی روک رہے ہیں۔ اب جی ایک آدمی نے 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر جس نے آگے جانا ہو یا 50 کلومیٹر، وہ گاڑی ادھر چھوڑ کر آگے کس طرح جائے گا؟ ٹریفک جو ہے وہ کافی متاثر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو بہت ساری دشواری کا سامنا ہے، جیسے مریض ہو گئے۔ سڑک پر موجود ہوٹل اور دکانیں بھی بند کروا کر پنجاب پولیس پہرے پر کھڑی ہو گئی۔ ٹریفک کے متبادل راستے اختیار کرنے کے باعث مسافروں اور شہریوں کو گھنٹوں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی نے 25 مئی کے مارچ کے دوران اپنی ہی یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کی۔ آئی جی اسلام آباد نے تفصیلی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ عمران خان کو تھریٹ الرٹس، علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 25 مئی کو بھی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی سے فائنینشیل گارنٹی بھی لی جا سکتی ہے، جبکہ علی امین سمیت دیگر رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ ایک رہنما نے وزیر داخلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، جبکہ عدالتی فیصلوں کے مطابق پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دی جائے، یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ جاڑا آیا، گیس چلی گئی۔ ملک میں گیس شارٹ فال سامنے آنے لگا ہے۔ ایک سال میں 2,20,000 صارف گھرانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ شارٹ فال 1,060 MMCFDC سے بڑھ گیا ہے، جبکہ کوئٹہ، حیدرآباد سمیت بہت سے علاقے متاثر ہیں۔ سردیاں آئیں، گیس غائب ہو گئی۔ ملک میں گیس صارفین کی تعداد 1,12,00,000 سے زیادہ ہو گئی۔ طلب بڑھنے پر شارٹ فال 1,060 MMCFD سے بڑھ گیا اور اس کی فراہمی بھی مشکل ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے واضح کر دیا کہ اس موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی۔ کوئٹہ میں گیس بحران آ چکا ہے۔ بیشتر علاقوں میں لوگ LPG استعمال کر رہے ہیں، جو فی کلو 30 روپے مہنگی ہو چکی ہے۔ 30 روپے 40 روپے، ادھر تو بازار میں 30 روپے، مگر ہمارے علاقے میں تو 50 روپے مہنگا ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا ڈبل لے جائے گا تو 300 روپیہ 350 روپیہ بڑھتا ہے۔ حیدرآباد کے بہت سے علاقے بھی گیس کی سہولت سے محروم ہیں۔ قاسم آباد، لطیف آباد اور سٹی زیادہ متاثر ہیں۔ لوگ بازار سے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مکین کہتے ہیں نہ بجلی ملتی ہے نہ پانی، اب گیس بھی نہیں آ رہی۔ جاڑا ابھی پوری طرح آیا نہیں اور گیس بحران پیدا ہو چکا ہے۔ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ گیس کی ضروری فراہمی ممکن ہو سکے۔ وفاقی حکومت نے سردیوں میں گیس مہنگی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قیمتیں نہ بڑھانے پر 100 ارب روپے کا اضافی بوجھ کیسے پورا کرنا ہے، اس حوالے سے مختلف آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جاڑے میں صارفین کو گیس ویسے ہی نہیں مل رہی، اس پر سوئی صدرن اور سوئی نادرن نے قیمتیں 96 سے 200% تک بڑھانے کی درخواست کر دی۔ وفاقی حکومت کا گیس مہنگی کرنے سے صاف انکار، کہا سردیوں میں بحرانی صورتحال کے باوجود نرخ ہرگز نہیں بڑھائے جائیں گے۔ مہنگی درآمدی گیس خرید کر عوام کو سستی فراہم کرنے سے پڑنے والا 100 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ کو سبسڈی کی مد میں رقم نہ ملنے کی صورت میں 100 ارب روپے گردشی قرض میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 1,500 ارب سے بڑھ کر 1,600 ارب روپے ہو جائے گا۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق ملک بھر سے 1,12,00,000 سے زائد صارفین کے لیے گیس کی طلب 3,460 جبکہ رسد 2,425 MMCFD ہے۔ یہ شارٹ فال 1,060 MMCFD سے بھی تجاوز کر چکا۔ اس صورتحال میں وزارت پیٹرولیم صارفین کو 8 گھنٹے تک گیس فراہم کرنے سے معذوری کا اظہار کر چکی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف 6 گھنٹے کے لیے گیس فراہم کرنا بھی بڑا چیلنج بن گیا ہے۔
मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा समेत बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -5 है, जबकि कालाम -4, हुंजा, स्तूर और कल्लात में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी जलवे दिखाने लगी। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। ग्रीस, अड़ंकील, शॉन्टर और जागरा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में सर्दी घर करने लगी, जहां मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाद इलाके का हुस्न तो निखर आया, लेकिन सर्दी बढ़ने से लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। रास्तों की बंदिश से परेशानी बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने इमारत खाली कराने के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। पुलिस ने शेलिंग करके तलबा को मुंतशिर कर दिया। अदालती हुक्म पर अदालती बालिफ कॉलेज की इमारत खाली कराने पहुंचे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। अदालती फैसले की तकमील के लिए अदालती बैलिफ पुलिस नफरी के हमरा कराची के इस्लामिया कॉलेज को खाली कराने पहुंचे। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर वाटर कैनन भी तलब की गई थी। पुलिस आने की खबर पाकर कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए आए तलबा सामने आ गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। कुछ तलबा को हिरासत में भी लिया। तलबा का कहना था कि कॉलेज खाली कराना है तो उनकी तालीम का मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए। पुलिस आ गई है, क्या नाम है कि कॉलेज को खाली कराओ डंडे के जोर पे, तो इसमें हमारा तालीमी नुकसान हो रहा है। या गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे जिससे हमारी तालीम को नुकसान ना हो। इंतजामिया ने हमसे कुछ नहीं कहा सर, बस हमें पता चला है कि ये गिराने आए सर, ये खुद हम अपनी आवाज़ उठाने आए सर। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन अब्दुल अलीम लाशारी का कहना था ये जमीन KMC की है जिसका हम किराया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हाई कोर्ट में मुद्दई बने हैं, जिसका फैसला होना बाकी है। अभी तक क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन ही नहीं आया और ये लोअर कोर्ट से जो है वो एक आर्डर जो है वो मैनेज करके लेके आए हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि शायद ये सही नहीं है। 4 कॉलेजेस हैं, 4 स्कूल है और 7000 से ज़्यादा बच्चे हैं। जाहिर है उनके मुस्तकबिल से हम इस तरह किसी को खेलने तो नहीं देंगे और हमारी कोशिश है, हम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। अब्दुल अलीम लाशारी ने बताया अदालती बैलिफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया है, अदालती फैसले पर अमल करेंगे। कॉलेज कॉम्प्लेक्स के कब्जे के लिए इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट ने 1992 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तवील अदालती जंग के बाद मातहत अदालत ने 2008 में दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमारत खाली करने का हुक्म दिया, जिस पर इस्लामिया कॉलेज इंतजामिया ने 2009 में सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। अदालत आलिया ने अपील मुस्तरद करते हुए रेंट कंट्रोलर का फैसला बरकरार रखा। सिंध हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी अपील मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में दूसरी आईनी दरख्वास्त दायर की, जो 2018 में मुस्तरद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मगर अपील और फिर नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट के दरखास्त गुजार मुरीद अली शाह ने तालीमी इदारे कौमी तहवील में लेने की पॉलिसी खत्म होने पर अदालत से रुजू किया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज को कौमी तहवील में लिया गया था। पॉलिसी खत्म होने के बाद कॉलेज की इमारत और जमीन वापस दिलाई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके लांडी में ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गफलत बरतने पर SHO समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। कराची के इलाके लांडी की गुल अहमद कॉलोनी से अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के केस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। SSP मलिर के मुताबिक फोरेंसिक क्राइम टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करके नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं, जबकि बच्ची के वालिद ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। पहले जो पोजीशन थी पुलिस की तो वो बिल्कुल जीरो थी, उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। अगले जुमे तक अगर कुछ नहीं किया तो फिर जिधर हम बैठ गए तो फिर मैं भी इस बंदों को नहीं उठा सकता हूँ।
क्योंकि आवाम बोल रहे हैं कि भाई उठो। SSP इन्वेस्टिगेशन महर अरब ने बताया, बच्चियों की गुमशुदगी के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। ये रोजाना की बेसिस पे ऐसे 2-3 केसेस डेली आ रहे हैं, आपको नहीं पता इन चीज़ों का। और इसमें कई बच्चियां जाती हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद वापस आ जाती हैं। ये आजकल मामूल बन गया है। और हमारे पास एवरेज जो केस आ रहे हैं ना, वो 3-4 डेली के केसेस आ रहे हैं। सिंध की वजीर तरक्की निस्वा शहला रजा भी मुतासरा वालदैन से मुलाकात के लिए पहुंची और हमदर्दी का इजहार किया। शहला रजा ने वाक़े को पुलिस की गफलत का नतीजा करार दिया। FIR कट भी जाए तो उसके बाद जो एक मूवमेंट है वो नज़र आनी चाहिए कि कितनी देर तक ढूंढा गया, कहाँ क्या मोहल्ले की टीम के साथ ढूंढा गया, कितनी टोलियां बनाई गई। SSP मलीर के मुताबिक मुकदमे के इंदराज में ताखीर और गफलत बरतने पर SHO समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। अहम खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मोटरवे पर हैवी बाइक्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मोटरवेज पर बाइक चलाने की इजाज़त खतरनाक हो सकती है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, बताइएगा मजीद। मारूफ, बिल्कुल मोटरवेज पर बाइक चलाने की इजाजत देना खतरनाक होगा, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक चलाने की इजाजत देने के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जो जारी किया गया है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको करारदम करार दे दिया गया है। अदालत उस्मा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मोटर बाइक चलाने की इजाजत देना खतरनाक होगा। कानून शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। हुकूमत के पास एहतियाती तदबीर के तहत मखसूस इलाकों में मोटरसाइकिल पर पाबंदी का इख्तियार है, ऐसा कहा गया है तहरीर फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन कल होगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कराची के सदर थे, उन्होंने 12 किताबें भी लिखीं। ये रिपोर्ट देखिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। सानहे की खबर दारुल उलूम कोरंगी में मरहूम के छोटे भाई और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने असातिज़ा और तुलबा को दी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की रहलत के इत्तला मिलते ही तुलबा और मोतक़िदीन की बड़ी तादाद दारुल उलूम पहुँच गई। क़ारी उस्मान का कहना था, आलिम इस्लाम एक जय्यद आलिम दीन से महरूम हो गया। उनका ये सानहे रहलत जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानहा है। वो एक आलमी शख्सियत थे। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा इतवार की सुबह 9 बजे दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी तक़सीम हिंद से पहले हिंदुस्तान के कस्बे देवबंद में 21 जुलाई 1936 को पैदा हुए। वो जामिया दारुल उलूम कराची के सदर थे। विफाकुल मदारिस अरबिया के सरपरस्ते आला का ओहदा भी उन्हीं के पास था। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मुफ्ती आज़म देवबंद मोहम्मद शफी देवबंदी से हासिल की थी। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा उलमा में होता था। उन्होंने 12 के करीब किताबें लिखी, जिनमें दरस मुस्लिम, 2 कौमी नज़रिया, नवादुरुल फ़िक़ह काबिल ज़िक्र हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भी हैट्रिक कर ली है, मगर किस चीज़ की, ये जानने के लिए सियालकोट का रुख करते हैं और समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हैट्रिक कर ली है। ये हैट्रिक किस चीज़ में की है मैं आपको बताता हूँ। 2014, 18 और अब 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप में ऑफिशियल बॉल जो खेली जा रही है वो सियालकोट में तैयार की गई है। और ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार मुसलसल बाल सियालकोट में ही तैयार की गई है। बहुत ही खूबसूरत ये बाल है, 20 पैनल पर ये मुश्तमिल है और ये कतर की सकाफत को मद्देनज़र रख के इसका डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो कलर कम्बिनेशन है इस मैच बॉल की, वो कतर के परचम से रंगी हुई ये बाल है। और ख़ुसूसी तौर पे ये जो बाल है ये बायो मटीरियल से, वाटर बेस्ड मटीरियल से तैयार की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में शाही और कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। फहद भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। कवाली नाइट में फ्रांस, नॉर्वे, जापान, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और कनाडा समेत 26 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की।
साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ऐसी तकरीबात से पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर होता है। कवाली नाइट के मेजबान तौफीक बट का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। गैर मुल्की मेहमानों के लिए पाकिस्तानी खानों और कवाली नाइट का मकसद पाकिस्तानियों की जानिब से मोहब्बत का इजहार करना है और उन्हें पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाना है। दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान का एक खूबसूरत, एक रोशन जो चेहरा है वो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कवाल शुएब अब्बास ने अपने फन से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तानी रंग में रंग गए और कवाली के सुर ताल पर भंगड़े डालते रहे। कैमरामैन फयाज उमर के साथ फात भट्टी, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।